राधे राधे, नमस्कार। आज के 4th एपिसोड ऑफ संवाद विद पुंडरीक जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Today is a very very special day, but before beginning anything, I would like to request and welcome the host, the main man, Shri Pundareek Goswami Ji Maharaj, live with us. Namaskar. Thank you, everybody. Namaskar, all the viewers in Arushi. Thank you. Thank you. महर्षि आपका दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है. Yesterday was a very very good day. We had a beautiful discussion. How are you today, Maharishi? Excellent. Excellent. I'm looking forward for today's conversation with my most precious and very important guest, very close to my heart. Very absolutely. And very respected personality of India. Absolutely, Maharishi. So without any further ado, क्योंकि आज का एक एक मिनट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल आज के दिन धर्मगादी राजगादी से मिलने जा रही है. I request, welcome and thank our very honorable guest, Honorable Governor of West Bengal, Shri Jagdeep Dhankar ji, today on live with us for a Samvad with Pundareek ji. नमस्कार. मैं आपका बहुत बहुत हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ ऑनरेबल महामहिम जी. आपका हृदय से आभार. It's a lifetime moment for me. When you visited Raj Bhavan in January, we were inspired, motivated. People in Kolkata have told me your Bhagavad was ever remembered by them, and we, with folded hands, pray to you, please accept our request to visit the state of West Bengal as early as possible. Oh, thank you, Governor Saab. If you are inviting, that's an excellent and I would say unique invitation. And as soon as the things calms down and lockdown opens, I think that would be the first thing I would do, because this is the first formal invitation which I'm getting from someone, and I have to respect it. I would be there in the service of my land. West Bengal is always very, very special for me, because I am coming from lineage of Chaitanya Mahaprabhu, who have started this bhakti movement in all over the world. And you are somehow managing there officially. You're the head of the state, and it's a very special moment. So according to me, I would say somehow my own land is inviting me, and my own respected person is inviting me. Thank you for such a sweet gesture, Honorable Governor Sahib. Let me indicate, Maharaj ji, bless us by staying at Raj Bhavan. The invitation is staying at Raj Bhavan. Oh, it would be my honor. It would be. I visited recently when I was in Kolkata. It was excellent time spending some family time with you and looking different places of Raj Bhavan. Those dining rooms, those furniture has a very massive history of our India. It would be my honor to be with you and to such a renowned and respected place of our India. The world is passing through a very difficult phase. We are virtually in the third world war. Very true. This is unique war. Entire human race is on one side. Invisible virus, which I call as secular, non-discriminatory, affiliated to no ideology, has shaken the world as never before. At this juncture, coming anything from sublimity like you will motivate the people, remind them of our cultural roots, bring them together, convert them into an army, cultural army, to fight this enemy and to spread brotherhood. Thank you, Governor Saab. It's a great honor that you have recognized this. The major thing is, of course, there are many people who want to work on that field in this country, but they don't have the recognition.
And but I would say your greatness is that you understood the situation, and you know that who can work for it. Thank you for such a great gesture. As you said, it is very true. It is very unplanned, uncertain situation what happened in this whole world. People were preparing massive weapons, and they, as in Hindi they said that पूरी दुनिया परमाणु बना रही थी, but अभी छोटा सा कीटाणु भी हैंडल नहीं हो पा रहा. It is such a such a terrible situation which everybody is facing. So I was thinking about few things to discuss with you, and I would like to give my point of view on that. And if something would be coming from you, it would be, I would say, will show a future of this country. It would be a roadmap for everybody, and whatever you would say, it's going to be officially accepted. So first thing is that all my team and everybody, we thought about some things which I should discuss it with you. The first point was that do we see end to the pandemic, and do you feel humankind has to adapt new life? My personal view on that, Governor Saab, is that there would definitely be an end of everything, whatever is happening. We have a theory of Srishti, Sthiti, and Pralaya. So whatever happens, there is always an end, and everybody is looking for this medicine and vaccines for that. And I definitely know if we have people like you, India would be pioneer in also making this vaccine. I accept that. But of course, if we will not change our lifestyle, new pandemics would come. So there's a drastic need in involving nature, whatever we do. Technically, I think it was not the humans who were quarantined, it was the nature who was quarantined. Nature wanted this some kind of breathing space. The ozone layer has recovered. So many good things has happened. So there's a drastic need of changing the lifestyle. What are your views, Governor Saab, on that? Punrit ji, Maharaj ji, I have no doubt our mindset will be changed as never before. It will be a different world when the situation settles down. Our societal life has undergone big change. During these more than 2 months, families have come to know each other as never before. They have thought within the rat race. The man was becoming a mechanical machine, not caring for emotions, not caring for culture. Now suddenly we are reminded how good our culture was, how our habits were of that nature. We were ruthless, reckless for nature, other living beings. That insensitive approach will be undone, and lifestyle will be very different. One human being will have a different kind of concern for another human being now. At this juncture, my heart goes to those who have lost near and dear ones because of COVID. But at the same time, the challenge to the entire society is कोई भूखा नहीं रहे, किसी के पेट पर लात न पड़े. हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी गहराई है. और सबसे अच्छी बात यह है, पश्चिम बंगाल में NGOs have come forward. वो NGO जिनको आप भी जानते हैं, साधुवाद तरीके से काम कर रहे हैं. तो मेरा मानना है, न तो दफ्तर ऐसा रहेगा जो पहले था, न सड़कें वैसी रहेंगी, and we will have to cope up with the challenges. वैक्सीन ही इसका एक अंत होगा. दुनिया का सबसे बड़ा पावर अमेरिका 1 लाख के करीब डेथ में पहुंच गए. कहते थे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है. हालत वहां पर क्या देखी. भारत पर अब तक भगवान की कृपा बनी हुई है, और भारत के प्रधानमंत्री ने जो नेतृत्व दिया है, I am proud of it. What a visionary man. He thought well in time, took the entire nation along with. जनता कर्फ्यू के दौरान जब उन्होंने तालियां बजवाई, उसका अर्थ लोगों को समझ में आया. जब 5 अप्रैल को दिए जलाए, पूरा देश एक सूत्र में बंध गया. ऐसा नेतृत्व जब हमको मिला है, तो मैं मानता हूं कि भारत के लिए कोविड-19 से एक बहुत बड़ी ताकत उभर कर आएगी. जो टनल है कोविड-19 की, और जो प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, उसके अंत में मुझे रोशनी नहीं, फ्लड लाइट दिख रही है ऑफ होप, ऑफ न्यू भारत, सेल्फ रिलायंट भारत. और मैं समझता हूं
भारत ने कभी किसी का हित नहीं चाहा है। भारत पर ये जो संकट आया है दुनिया का, इसका नतीजा मेरे को मानना एक ही होगा। हम सोचेंगे, समझेंगे, असली ताकत को पहचानेंगे और हमारे बीच जो कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से कोविड-19 की बैटल कुछ हद तक दिल्ली के निजामुद्दीन की वजह से कुंठित हो गई थी, लोग सजग हैं, जी एकाग्रता से काम कर रहे हैं। आई कैन टेल यू महाराज जी, जब आप बोलते हैं कोई बात लाखों लोगों पर असर क्यों करती है? उसमें किसी का हित नहीं है, हित विश्व का है, बियॉन्ड बाउंड्रीज है। हर आदमी समझता है दिस इज कमिंग आउट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो मैं मानता हूं ये संकट की घड़ी है, इसमें सबसे बड़ा सिपाही यदि कोई है तो भारत का नागरिक है, वही सिपाही है, वही जनरल है, क्योंकि उसी को सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। और कमी बेसी जो कुछ है धीरे धीरे, मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूं, वी विल राइज टू द ओकेजन, आई हैव नो डाउट अबाउट इट। बहुत सुंदर बात आपने कही गवर्नर साहब, और मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, इतना बड़ा देश है तो धीरे धीरे चीजें सामने दिखने में समय लेती है। एक बहुत अच्छा शब्द जो मुझे लगा, हालांकि बहुत सारे लोग उस पर अलग अलग विचार अपने मत प्रस्तुत कर रहे हैं, वो था जो आत्मनिर्भरता का संदेश आया माननीय गवर्नर साहब। ये बहुत बड़ा अध्यात्म से भरा हुआ शब्द है। आत्मनिर्भरता एक प्रकार से सेल्फ डिसिप्लिन भी है, सेल्फ डेडिकेशन भी है, सेल्फ प्लानिंग भी है, आई वुड से सेल्फ डेवलपमेंट भी है। सब कुछ ये पूरी स्पिरिचुअलिटी का सार ही आत्मनिर्भरता है। जब तक हम दूसरे पर निर्भर रहते हैं तब तक, चाहे भावनाएं हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे फैमिली, कुछ भी, सब चीज बिगड़ती जाती है। और जब हम आत्मनिर्भर का एक और अर्थ मैं समझ सकता हूँ, अपनी आत्मा के ऊपर निर्भर, ये सोल कॉन्शियसनेस, वो भी उसका बहुत गहरा शब्द है। और निश्चित रूप से भारत के पास तो ऐसा अभ्यास है माननीय गवर्नर साहब, क्योंकि हमारे पास इतना इतिहास भरा हुआ है सोशल डिस्टेंस। हम मंदिर में भगवान की सेवा करने जाते हैं, अभी आपने जैसे निजामुद्दीन का विषय भी उठाया, पर जो मूल भारतीय परंपरा में मंदिर जाने की परंपरा, या खास हम लोग जब भगवान की सेवा के लिए जाते हैं तो मैं समझता हूँ एक दिन में कम से कम 200 बार तो हम लोग राधा रमण मंदिर में हाथ धोते होंगे अंदर ही, कि क्या स्पर्श करना है, क्या स्पर्श नहीं करना, किसको छूना है, किसको नहीं छूना। कहीं ना कहीं हम लोगों की चेतना में वो सोशल डिस्टेंसिंग, जो अब एज अ सोशल डिस्टेंसिंग नाम से प्रस्तुत की जा रही है, हम लोगों के अभ्यास में बहुत पहले से वो है। और बहुत ज्यादा भारतीय नागरिक उसे बड़ी सहजता से, बड़ी दिव्यता के साथ स्वीकार कर रहा है। एक अवश्य परिस्थिति आन खड़ी हुई है गवर्नर साहब, और उस पर आप सब लोग चिंतन भी कर रहे हैं, और मेरा हृदय भी उसको लेके बहुत व्यथित है, कि जो सामान्य एक गरीब तबके का व्यक्ति है, और बंगाल में भी बहुत ज्यादा, उत्तर प्रदेश से मैं हूँ, हमारा और आपका, मेरा निवास जहाँ है, और आप जहाँ के एक प्रकार से नियंत्रक हैं, इन दोनों ही स्टेट्स और बहुत सारी स्टेट में बड़ी दूर दूर से चलकर जो ये मजदूर तबका और सब आ रहा है, उनकी स्थिति देखकर हृदय को पीड़ा है, पर उनकी ऊर्जा और ललक देख करके भी आश्चर्य हो रहा है। मुझे लगता है देश के असली हीरो तो वो ही है। I am beholden to you, Your Holiness, for two reasons. आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपने आत्मनिर्भर उसमें जोड़ दिया। दुनिया में जो भी कोई स्पिरिचुअलिटी के लिए आता है वो हिंदुस्तान आना चाहता है। एंड मैंने देखा है ड्यूरिंग दिस 2 months I am vertically and horizontally in touch with academicians, vice chancellors, senior citizens, ex defense personnel, सबने एक ही बात कही है, टुगेदरनेस इन फैमिली। एक ने तो कहा कोविड-19 इज अ ब्लेसिंग इन कर्स। हम हमारे परिवार के लोगों को जानना सीख गए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना सीख गए, जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए वो किया है, एक दूसरे के सेंसिटिविटी को समझने लग गए, हालात को समझने लग गए। तो मेरा ये मानना है कि आत्मा का शुद्धिकरण भी कोविड-19 करेगा, निश्चित रूप से होगा। दूसरी बात, अब हर तरीका बदल जाएगा, आर्किटेक्ट अपना काम दूसरे तरीके से देखेगा,
इंटीरियर वाला दूसरे तरीके से देखेगा, ऑटोमोबाइल बनाएगा कैसे बनाएगा देखेगा, क्योंकि वी विल हैव टू लिव विद द चैलेंजेस. दीज चैलेंजेस मे कम इन डिफरेंट फॉर्म्स. तो ह्यूमैनिटी को इतना बड़ा जो चैलेंज हुआ है उसमें कुछ चीजें हम बिल्कुल भूल गए थे, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियोसिटी, और सम पीपल हैड बिकम सिनिकल अबाउट इट. उनको लगता था मटेरियल गेन इज द एंड ऑफ इट. अब उनको नहीं लग रहा है. अब मुझे कितना अच्छा लगता है कि हर यहाँ जूट और टी का गार्डन का मालिक कसकर भी वर्कर का ध्यान दे रहा है, कमर्शियल एलिमेंट नहीं देख रहा है. बिकॉज जो आत्मा का आपने कहा था, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर, आपने आत्मनिर्भर कहा, लोगों की आत्मा झकझोर कर रही है. जो भी आप पर डिपेंडेंट है उसको पेट कसना नहीं चाहते, खुद कसने चाहिए. तो आई एम श्योर अबाउट इट. एंड इसका एक एंगल और होगा महाराज जी, एंटरप्रेन्योर टैलेंट ऑफ इंडियन यूथ विल एक्सप्लोड. वो ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते. 2014 में कुछ कदम उठाए, लोगों ने उनके लॉन्ग टर्म को देखा नहीं. कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने एक झटके में माताओं और बहनों के अकाउंट में पैसे भेज दिए. क्या भेजे जा सकते थे? जनधन अकाउंट नहीं होता था. कैसे किसानों को करोड़ों रुपए मिल गए, सब मिलाकर कर सकते थे. कैसे आयुष्मान भारत को पूरे देश ने बदल दिया. ये चीजें हैं कि गांव में भी यदि अगर आज कनेक्टिविटी है, उसका फायदा पूरी तरह से समाज को मिल रहा है. तो पहली बार भारत का नेतृत्व विश्व की प्रथम पंक्ति में है. विवाद का विषय नहीं है. भारत आज किसी भी देश से डरने वाला नहीं है. और मैं मानता हूं भारत का रेस्पेक्ट दुनिया में बहुत ऊपर बढ़ा है. ऐसी संकट की घड़ी में भी भारत ने अपने पड़ोसी देशों की मदद की है, अमेरिका की मदद की है. ये भारत की मूल संस्कृति है. तो मैं मानकर चलता हूं कि जो कुछ आगे होगा अकल्पनीय है. मन पर, दिल पर, दिमाग पर, कार्यशैली में जो परिवर्तन होगा बहुत पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव एनर्जी विल इमनेट. और तभी मैं कहता हूं एट एंड ऑफ कोविड-19 टनल देयर विल बी फ्लड लाइट ऑफ होप, अपॉर्चुनिटी, आत्मनिर्भरता एंड आत्मनिर्भरता, एज वेरी ग्रेशियसली it has been indicated. थैंक यू गवर्नर साहब. बिल्कुल, मिल्टन, महाकवि मिल्टन हुआ, उसने 2 शब्द लिखे, हेवन आउट ऑफ हेल और हेल आउट ऑफ हेवन. तो बिफोर द वर्ड वाज हेवन एंड वी वर जस्ट टेकिंग हेल आउट ऑफ इट, but now maybe there's a hellish situation, but India has this hope that we can still make heaven out of this hell, as you have said. डेफिनेटली परिवार आपस में एक दूसरे से इतनी करीब. मैं अपनी आपसे पर्सनली बात कहूं, मैं तो एक ट्रैवलर हूं, हर सदैव यात्रा में रहता हूं, सतत यात्रा में रहता हूं. शायद जब से पैदा हुआ तब से आप पहली बार मुझे ये अवकाश मिला गवर्नर साहब कि मैं एक स्थान पर पिछले 3 महीने से हूँ और अपनी दोनों बिटियाओं के साथ, परिवार के साथ बड़ा आत्मीय, बड़ा सहज, बड़ा दिव्यता से भरा, अध्यात्म से भरा हुआ ये समय व्यतीत कर रहा हूँ. एकमात्र यही देश है जिसने आत्मा के विषय में दुनिया को जागरूक किया. और मैं पूरी दुनिया की खबरें सुन रहा था गवर्नर साहब. फैमिली क्लैशेस भी हो रहे थे क्योंकि लोगों को ऐसा अभ्यास नहीं था, और हाउ टू स्पेंड देयर टाइम ऑल्सो वो ये भी नहीं प्लान कर पा रहे थे क्योंकि ऐसा अभ्यास नहीं था. पर भारत के पास अब अंदर का, मेरे पिताजी कहते थे दुनिया के पास बाहर का बहुत कुछ हो, तो भारत के पास अंदर का बहुत कुछ है. तो हम लोगों के पास अंदर का इतना कुछ है. लोग रामायण देखने में रम गए कि उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. परिवार के साथ इतनी आत्मनिर्भर, आत्मा को इतना संबलित कर लिया कि अब वो उस पर निर्भर हो सकते हैं इस लॉकडाउन के पीरियड के बाद, जो कि बहुत सुंदर बात आपने उसमें से बीच में से उठा ली, जो कि इस देश की सबसे बड़ी सामर्थ्य यहाँ का अध्यात्म ही है. बंगाल के क्षेत्र से
चाहे स्वामी विवेकानंद जैसे आदर्श निकले हों, चाहे उस क्षेत्र से भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जैसे आदर्श निकले हों, जो पूरी दुनिया को अध्यात्म का पाठ पढ़ा करके आए हैं, उसके लिए आपकी ये बंगाल की धरती अद्भुत है। स्वतंत्रता से जुड़े बोस जैसे आदर्श जहां पैदा हुए हों, तो इस पूरी भारत की नींव कहीं ना कहीं जाकर एक बिंदु में इस अध्यात्मवाद पर ही मुझे एक एक किस्सा याद आता है। ऑनरेबल गवर्नर साहब, आइंस्टाइन जब था तो वो एक जब एटॉमिक बॉम्ब का निर्माण कर रहा था तो एक विशेष चैम्बर में बफलो में अमेरिका के बॉर्डर पर वो उसका निर्माण कर रहा था। और ये परिस्थिति हुई जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आया, तब आइंस्टाइन ने उस समय उसको जो भी गवर्नमेंट की उस समय नीति रही, लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, उसे पता चला कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर वो एटम बम गिरा दिया गया। उससे उस बात को उसको इतना सदमा लगा आइंस्टीन को कि कहते उसके बाद जब वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो पूरी जिंदगी भर उसने 2 शब्दों के अलावा कुछ नहीं बोला। एक ये कि प्लीज ओपन माय विंडो एंड दूसरा ये क्लोज माय विंडो। और ऐसी परिस्थिति में उसके एक मित्र ने उसे गीता दी और बची हुई पूरी जिंदगी एल्बर्ट आइंस्टीन गीता ही पढ़ता रहा। ये इस देश का सबसे सफल सूत्र है। जो आत्मा पर निर्भर हो गया वो आत्मनिर्भर बड़ी सहजता से हो सकता है। गवर्नर साहब ने बहुत अच्छी बात की। मैं आपको बताऊंगा, मैंने बहुत लोगों से बात की है, परिवार में सबसे छोटा कौन है। जब वो कहते हैं कि परिवार में सबसे छोटा 4-5 साल का बच्चा है, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, आदरणीय रेणुका जी से पूछिए, दोनों बेटियों से पूछिए, श्री तथ्या वो तथ्य ने बताएंगे, दे हैव सीन देयर फादर एज नेवर बिफोर। जी बात ही जबरदस्त रूप से है। कामना से जब मैं पूछता हूँ बेटी से, 5 साल के नाते से पूछता हूँ, मैंने उनको इतना कभी नहीं समझा, इस दौरान समझा। तो मेरा सुबह 3 घंटे है कि लोगों के संपर्क में रहता हूँ, आदमी 80 साल का हो 90 साल का हो, 1% पूछता हूँ बेटियों का क्या हाल है। वी बिलोंग टू डॉटर्स क्लब। बट महाराज जी, you are twice as lucky as myself. I have only one, you have two. इस मामले में मैं आपसे मेरा ये कहना गवर्नर साहब मेरा ये है, आवर सोसाइटल बिहेवियर, आवर फैमिली वैल्यूज, हमारी फैमिली वैल्यूज इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हमें यदि किसी की यहाँ शादी होती थी तो कन्यादान से शादी हो जाती थी। देखिए कितना जबरदस्त है। घर में अंदर आते थे तो जूते बाहर निकालते थे, पाँव पर पानी डालते थे, हाथ के, आपने बताया मंदिर में कितनी बार हाथ धोते हैं, हाथों को साफ करते हैं। ये संस्कृति के जो मूल है। इस दौरान बहुत लोगों से बात की, क्या पढ़ रहे हो, अधिकांश ने ये बताया रिलीजियस बुक पढ़ रहा हूँ। क्या देख रहे हो टीवी पर, रामायण देख रहे हैं, कितनी दिलचस्पी से देख रहे हैं। ये जो सांस्कृतिक रूप से भारत की रीडिस्कवरी हो रही है, कोविड-19 की वजह से लोगों को बहुत पीड़ा है। मेरे को बड़ी परेशानी होती है। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, वो कितनी ताकत से काम कर रहे हैं, परेशानी में काम कर रहे हैं। हमारे पुलिसमैन, हमारे एसेंशियल सर्विसेज वाले लोग, वो साधुवाद के पात्र हैं, पर उसके बावजूद भी वो कर रहे हैं। किस लिए, ये सोचना पड़ेगा। उनके अंदर उतनी लगनशीलता है जितनी उस फौजी की है जो देश को बचाने के लिए फ्रंटियर के ऊपर है। तो ऐसा जब लोगों में जज्बा है और लोग आगे चलकर जो परेशान है, माइग्रेंट लेबर है, उसकी क्या मदद कर रहे हैं। हिंदुस्तान बहुत विशाल है, जनसंख्या 130 करोड़ से ज्यादा है, कोई देश इसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसके बावजूद पूरे देश को एक सूत्र में बांधना एक बहुत बड़ी बात है, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो मैं मानता हूं कि ये इंस्पिरेशन फ्रॉम विद इन आया है, एंड इट विल बी लास्टिंग इंस्पिरेशन। जी जी, वेरी नाइसली यू हैव सेड गवर्नर साहब, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व रहा, सबने दिए जला दिए, सबने तालियां बजा दी, कि छोटे छोटे बिंदुओं से पूरे देश को जो एक यूनिटी का अनुभव हुआ,
मुझे लगता है वो बहुत लंबे इतिहास में इससे पहले कहीं नहीं हुआ था। अध्यात्मवाद तो स्वतः रूप से वननेस को स्टैब्लिश करता है, और बिल्कुल आपने मुझे बहुत आनंद दिया ये बात कह के कि हम डॉटर्स क्लब में हैं, और मैं बहन से भी मैं मिला था जब गवर्नर हाउस आया था, और मेरी दोनों बेटियों से अभी मैं आपको नहीं मिला पाया, बहुत जल्दी जब आऊँगा तब मिलाऊँगा। एंड आई थिंक इफ आई आस्क देम दे विल ऑलवेज रिमेंबर दिस टाइम इन देयर लाइफ। डेफिनिटली मैं भी अपने परिवार को जितनी गंभीरता से इन दिनों समझ पाया, और इससे पहले मुझे ऐसा कभी मौका नहीं मिला। और पूरी ये लाइफ टाइम एक और शब्द मेरे मन में आया था, एक नजर से देखो तो कोरोना है, दूसरे नजर से देखो तो करुणा है। कंपैशन है, जो 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 हम सबको बड़ी दिव्यता और चेतना के साथ अवस्थित कर रही है। करुणा ने करुणा जागृत होगी। आपने बहुत जबरदस्त कहा। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, कोरोना हैज पुट ऑन द हायर पेडेस्टल करुणा। जी जी जी, एक अंतिम बात कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जी जी जी। हाँ, महाराज जी। सॉरी गवर्नर साहब, एक चीज हम लोगों के मन में और आ रही थी कि ऑफ कोर्स एक अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग हैं वो एक बहुत बड़ा दर्द का विषय, वो ठीक होगा ही, जैसा आपने कहा समय लेगा, और सब लोगों को उनका ध्यान रखना चाहिए। इनफैक्ट मैं कल भी डॉक्टर से बात कर रहा था, मेरे भी जितने नियमित छोटे मोटे मेरी व्यवस्था संस्थाओं में जो सब कर्मचारी हैं, मैं पूरी कोशिश करके उनका ध्यान रख ही रहा हूँ। बट एक दूसरा इशू, एक और चैलेंज है, वो है यंग जनरेशन का वर्ल्ड वाइड, केवल इस देश का तो है ही है, पर एक वर्ल्ड वाइड सिचुएशन है कि हाउ मच द करंट सिचुएशन इफेक्ट देयर ग्रोथ। आपने बहुत अच्छी बात कह दी गवर्नर साहब कि ये देश एक यंग कंट्री है, और एज ए यूथफुल कंट्री इसका रिकॉग्निशन दुनिया में होता है। मैं अपनी बात कहूं तो मैंने आज तक इतना ऑनलाइन कोई कथा नहीं की थी, मैं तो पिछले 2 महीने से सबकी मेंटल हेल्थ और कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने के लिए बोले जा रहा हूँ। एज अ यंग होते हुए मैंने इस मीडियम का बेनिफिट किया है। तो फ्रॉम योर साइड व्हाट डू यू थिंक कि यंग जनरेशन को 1-2 साल का कहीं ना कहीं कोई ना कोई पीछे इफेक्ट आना पड़ेगा? आई पर्सनली फील देयर वुड बी अ पॉजिटिविटी, भारत का ही भविष्य है। आपके भी व्यूज इसमें सब लोग सुनेंगे तो एक बहुत बड़ी एम्पावरमेंट उन्हें मिलेगी गवर्नर साहब। Maharaj ji, there are two issues. By virtue of being governor of the state of West Bengal, जी and lot many brilliant West Bengal minds are all over the globe. They keep on sending representations to me. They keep on sending inputs to me. I am amazed. The world will be different. We will no longer have brain drain. We want to change India for one good reason, that what India has shown to the world, no other country has been able to show the people consensual approach. कुछ aberrations को छोड़ दीजिए. All political parties in the country united in this great mission to are committed that India is a safe place for exploitation of talent, for proper use of human labor. That मातृभूमि के प्रति लगाव जो बीच में शिथिल पड़ गया था, विदेश में रहने का एक चस्का लग गया था, वो खत्म हो गया है. I am personally of the view people will go outside for a purpose, but will get back to India at the earliest occasion. Your Holiness has been to the best of places for education also, including UK, but they will come back. We will go outside only as Your Holiness has gone on a number of occasions as cultural ambassadors of this great nation, only to give them something like Vivekananda did, not to give up our country. ये बड़ा change आएगा, and that I can see from the petitions I have got from all over the world.
जी जी गवर्नर साहब, बहुत आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी। आध्यात्मिकता जागरूक होगी और इस देश के, एक देश के प्रति, अब देश को उठाने का हमारे पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी पॉपुलेशन है, और हर व्यक्ति अगर अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा सा बेटर करने की आगे कोशिश करेगा, विथ नॉट जस्ट विथ सेल्फिश इंटरेस्ट। मैं कई बार कथाओं में एक बात कहता हूँ गवर्नर साहब की, मेरा हित हो और दूसरे का अहित हो, ये विकृति है। मेरा भी हित हो, दूसरे का भी हित हो, ये प्रकृति है। पर मेरा थोड़ा चाहे अहित हो जाए, पर सबका हित हो, ये इस देश की संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा ट्रेडिशन है। इस विचारधारा के साथ में जब व्यक्ति इस देश की राष्ट्रभक्ति से विकसित करेगा, तो निश्चित रूप से एक अद्भुत उज्जवल भविष्य उसे प्राप्त होगा। मुझे मालूम है आपका समय एक एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती है गवर्नर साहब, और इतनी इस समय तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी अनलिमिटेड है, फिर भी आपने इतने अपने व्यस्ततम समय में थोड़ा सा ये अवकाश निकाला, और मुझे पर्सनली इस बात का आनंद है कि बात तो मेरी आपके बीच में होती रही, पर आपको देखने का भी और एक ये विजुअल संवाद का जो ये अवसर मिला, ये राजगादी और धर्म गादी के मध्य का संवाद है, जो इस देश में हजारों वर्षों से होता रहा, और जैसे जैसे होता रहेगा वो इस देश को सदैव उत्थान देता रहेगा। मैं आपका ऋणी हूँ, और इस प्रकार इस महत्व को जो आपने समझा, ये पूरे पॉलिटिकली भी और स्पिरिचुअली भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ऐसा पहली बार ही घट रहा होगा कि हम कोई ये दो आसन एक साथ बैठकर वर्चुअली इस पीरियड में संवाद कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और सारे व्यूअर्स का भी। गवर्नर साहब, आप अंत में कुछ एक बात कहना चाहते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। एक हालात तो हो गए, मेरा हित हो और दूसरे का अहित न हो, ये तो कोविड अब तक कर पाया है। आपके जो शुद्ध विचार हैं तब तक भी लोग ऊपर उठ जाएंगे, मेरे को, मैं आशावादी आदमी हूं। पर आपने जो आत्मनिर्भर की बात कही है, दैट इज माई टेक फ्रॉम हियर, एंड दैट इज अ बिग टेक। आत्मनिर्भर के साथ आत्मनिर्भर हो जाएंगे, भारत विश्व गुरु निश्चित बनेगा, आप और हमारे जीवन काल में बनेगा, ऐसा मेरा निश्चित मानना है। मेरे लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आई हैव शेयर्ड द प्लेटफॉर्म विद यू। आई हैव शेयर्ड प्लेटफॉर्म विद अ पर्सन हु इज सो वेल रिकग्नाइज्ड। मेरे सामने वो बात आई है, जब राजश्री बिड़ला जी ने, आप बालक थे तब, उन्होंने वो फोटोग्राफ मेरे सामने है, और मैंने उनसे चर्चा की है, आज ही की है। तो मेरा ये मानना है कि लाइफ टाइम occasion for me, and I will take the message, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर। थैंक यू गवर्नर साहब। मेरा संवाद भी हुआ क्योंकि आप वकालत में थे, तो चेतन शर्मा जी किसी जमाने में आपके साथ वकालत करते थे, पोस्टर देखते ही हैज कॉन्टेक्टेड मी कि ये तो आपने बहुत अच्छा बात किया, वेरी वेल वर्स्ड एंड एक्सट्रीमली एजुकेटेड पर्सनालिटी आपके साथ आज संवाद करेगी। जिस जमाने में आप वकालत में हुआ करते थे, तो मैं उनकी संवाद, उनसे आपका और परिचय सुनकर मुझे इतना आनंद और उल्लास और उस वो अनुभव प्राप्त हुआ। मैं स्वयं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आप सबल होते हुए भी सरल हैं, और यही इस देश के नेतृत्व के लिए सबसे आवश्यक है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे पुरानी में, मैं बंबई में था, मेरी तीनों जनरेशन थी उस समय, राजश्री जी आई थी और उन्होंने उस समय स्वागत किया था, और मुझे भी बाद में वहां से सूचना प्राप्त हुई। बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, और भविष्य में आपसे निवेदन करूंगा कि पूरे देश का और हम लोगों का आप इसी प्रकार मार्गदर्शन करें। और मैं बहुत जल्दी, फिर पहला फॉर्मल निमंत्रण मुझे बंगाल से मिला है, ये सब व्यवस्थित होते ही सबसे पहले मैं बंगाल की भूमि से अपनी धर्म यात्रा के प्रचार को प्रारंभ करने का आप सबके सामने वचन लेता हूँ। एक ही बात कहूंगा, चेतन शर्मा इज अ न्यूक्लियर लॉयर, गवर्नर साहब जी, गवर्नर साहब आपकी आवाज वेरी थोड़ी कट वेरी रही है। थोरो लॉयर। मैंने बहुत मुकदमे, वेरी रिगार्ड फॉर यू, इनॉर्मस रिगार्ड। जी, सामने मेरे कई मुकदमे हुए हैं, उन्होंने चेतना कभी नहीं छोड़ी। He is nuclear in his approach. I have enormous respect for his talent and commitment, and a gracious human being.
पर सबसे ज्यादा बात मुझे अच्छी उनकी एक लगी, जब उनके परिवार का एक सदस्य बुजुर्ग बीमार था, उन्होंने प्रायोरिटी इतनी ज्यादा दी कि मैं उनसे चर्चा करता रहता था, बुजुर्ग का क्या हाल है. He would give highest priority to an elder member of the family. I have high respect for him. या जी, मेरा उनके साथ 3 जनरेशन का संबंध है गवर्नर साहब. वो मेरे दादाजी, पिताजी और मैं कई बार उनके घरों में संवाद करता रहता हूँ. मुझे आपसे उनका ये एक और ब्रिज मेरे आपके बीच का मिला, ये बहुत श्रेष्ठ बात है. मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ ये समय देने के लिए. और सभी को बहुत बहुत आभार, सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत आभार. और पुनः आपके आवाहन की मैं आप बार बार प्रार्थना करता रहूंगा. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. जय भारत. What a beautiful discussion that was, Maharishi. It was so intellectual. How did you feel about it? I mean, I know you, how much you love these scholar talks. How was it for you? Oh, it was very nice. It was very nice, very personal, and still it had the message. I know people can take out different things from it. They have their own views, they have their own comments on that. बट मैं कथाओं में भी बोलता रहता हूँ कि ठीक है, सबकी अपनी समझ है. मैं अपनी विशेष बात कहूँ तो ऑनरेबल गवर्नर साहब बहुत सरल, सहज और बड़े फैमिली मैन और स्कॉलर हैं. और उन्होंने जिस धर्म का को साथ में लेकर और मेरी सहज सी बातों को जितना महत्व दिया, वो एक बहुत खास बात थी. और Absolutely. निश्चित निश्चित अगर मेरा एक मानना है आरुषि, अगर संवाद होता रहे तो बड़े बड़े विवादों का हल हो सकता है. इसलिए बहुत बिल्कुल. अच्छे संवादों की जरूरत है, और जिससे इस बात की प्रारंभ हुआ. मैं आप सब व्यूअर्स का भी धन्यवाद करता हूँ. आप सब स्वस्थ प्रसन्न रहिएगा. आरुषि, आप संवाद को विश्राम करिए. धन्यवाद. थैंक यू गवर्नर साहब अगेन, एंड ऑल द व्यूअर्स. That was a beauty. There was so much to take from it. And thank you everyone who joined us. You can share this video, you can like this video, and you can leave your questions. आप अपने सारे प्रश्न हमारे साथ #samvad_with_punderik जी के साथ छोड़ सकते हैं अपने पोस्ट में, हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या कमेंट्स में, ताकि हम उन्हें अकोमोडेट कर पाएं. महर्षि के सारे सोशल मीडिया पेजेस पे हमारी सारी अपडेट्स रहती हैं. आपसे कल से फिर मुलाकात होगी. कल भी हमारे पास बहुत स्पेशल गेस्ट हैं आपके लिए. बस इसी तरीके से संवाद चलता रहे, आपको ये आशीर्वाद मिलता रहे और आपका प्रेम हमें मिलता रहे. बहुत बहुत धन्यवाद. अपना ध्यान रहिए, घर में रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए.